آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے مفت سولر پینل کی تقسیم کے منصوبے پر۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد منصوبے سے آؤٹ۔ 6 لاکھ سے زائد افراد کو پنجاب حکومت سے مفت سولر پینل نہیں ملے گا۔ گزشتہ روز سولر پینل منصوبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ بھی دی گئی۔ BISP میں رجسٹرڈ افراد سولر پینل کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، علی رامی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی رامی، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب حکومت نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں مفت سولر پینل دینے کا ایک منصوبہ جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، اور اس منصوبے پر اب تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں، لیکن اس میں اہم بات یہ جو کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اس منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی، اس میں بتایا گیا کہ اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو رجسٹرڈ افراد ہوں گے ان کو یہ سولر پینل جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، ان کو اس لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ پہلے سے کسی سرکاری پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں، تو لہٰذا وہ اس منصوبے کے لیے اہل نہیں ہوں گے، تو ان کو یہ سولر پینل جو ہے وہ نہیں دیے جا سکیں گے۔ اب دوسری طرف اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ جن کے پاس ڈیفیکٹو میٹرز لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اس اسکیم سے آؤٹ ہوں گے، اور اس کے علاوہ جن کے پاس 2 میٹر لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس اسکیم کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ صرف 100% یونٹ جو 100 یونٹ پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کے لیے ہی مفت سولر پینل جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی محکمہ توانائی پنجاب نے بریفنگ دی کہ 8800 ایک نمبر جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، جس پر کوئی بھی شہری اپنا ID کارڈ نمبر جو ہے وہ وہاں پر سینڈ کرنے کے بعد اپنی اہلیت جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے کہ آیا وہ اس منصوبے کے لیے اہل ہے یا نہیں۔ تو اس کے بعد ان کو جو تصدیق جو ہے وہ کر دی جائے گی، تصدیق کے بعد وہ پھر اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کریں گے آن لائن۔ اپلیکیشن سبمیشن کے بعد جو ہے وہ PITB کا کردار جو ہے آگے سامنے نظر آئے گا، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق جو ہے اپنی کرائٹیریا کے مطابق ان کی سلیکشن جو ہے وہ کریں گے۔ تو لہٰذا سولر پینل کی تقسیم میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ایک بہت بڑی تعداد کی جو رجسٹرڈ ہیں ان کو اس اسکیم سے نکال دیا۔ علی رامی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں، واسا کو شہر کی 19 اسکیموں کے لیے 2 ارب 30 کروڑ سے زائد کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے فنڈ ایلوکیشن صرف 28 کروڑ کی واسا نے مختص فنڈز مانگنے پر ہی اکتفا کر لیا، فنڈ جاری کرنے کی استدعا کی۔ مزید جانتے ہیں اس معاملے پر در نیاب ہمارے ساتھ ہیں۔ در نیاب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پنجاب حکومت کا بالکل انوکھا مذاق ہے کہ لاہور شہر کے لیے اتنا بڑا پیکج منظور کیا گیا اور 2 ارب 80 کروڑ سے زائد کی اسکیمیں پاس کی گئیں، جس کی وزیر اعلیٰ نے اصولی منظوری بھی دی، ایڈمن اپروول بھی ہوئی۔ لیکن اب فنڈ ریلیز کرنے کی باری آ رہی ہے تو صرف 28 کروڑ کے فنڈ جو ہیں ایلوکیٹ یعنی مختص کیے گئے ہیں، اور وہ بھی ابھی تک جاری نہیں کیے جا رہے، جس میں واسا جو ہے وہ بارہا ان کو اس پہ خط لکھ رہا ہے، مراسلہ لکھ رہا ہے کہ یہ فنڈز جاری کیے جائیں، اور اگر یہ فنڈز جاری نہیں ہوتے تو ٹائم گزر جائے گا، فنڈز لیپس ہو جائیں گے، جس میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اب بات کی جائے تو اپریل ختم ہونے کو آ رہا ہے، اس کے بعد مئی اور پھر جون 30 سے قبل جو ہے یہ تمام فنڈز کو خرچ کیا جانا لازم ہوگا، ورنہ یہ لیپس ہو جائیں گے۔ اور اتنے شارٹ ٹائم میں پہلے ہی واسا پہ پریشر ہے کہ لاہور شہر کے 19 مقامات پر واٹر سیور لائن کے بحال کرنا، 2 ارب 80 کروڑ کا فنڈ جو ہے اس کے مطابق اسکیموں کو چلانا، اور پھر اس کی فنڈنگ جو ہے وہ 28 کروڑ کے مطابق 30 جون سے پہلے وہ پیمنٹ کرنا، پھر 30 جون کے بعد مزید فنڈ کے لیے پیچھے پھرنا۔ اس تمام دباؤ کے باوجود واسا پرفارم کرنے کو تیار ہے۔ اس کے دوران لاہور شہر کو کھود دینا جگہ جگہ مختلف مقامات پر، یہ بھی عقل مندی نہیں ہوگی، جس کے لیے واسا حکمت عملی بنا رہا ہے تاکہ فنڈز بہت کم مختص ہونا، کئی گنا کم منظوری سے زیادہ مختص جا سے واسا کو بھی پریشانی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ در نیاب ہمارے ساتھ تھے۔ اپڈیٹ پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن کی ٹوکن مشین بھی خراب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پاسپورٹ آفس کے حالات دیکھ کر برہم۔ ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے، عملے کی ملی بھگت کے بغیر پیسے لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس کو فوری طور پر تبدیل کر دیا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تبدیل، فوری طور پر محکمانہ کارروائی کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاسپورٹ آفس میں شہریوں سے مسائل پوچھے، بزرگ شہریوں نے بھی شکایات کے انبار لگا دیے۔ شہریوں نے شکایت کی پاسپورٹ آفس کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں، پیسے دے تو پاسپورٹ کو پہیے لگ جاتے ہیں، گارڈ سے لے کر ہر کوئی پیسے مانگتا ہے۔ شہریوں کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے یہ گفتگو تھی، جس پر وزیر داخلہ نے کہا کہ ڈائریکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، ہر کوئی ایجنٹ اور عملے کی جانب سے پیسے لینے کی شکایت کر رہا ہے، آپ کے لیے آیا ہوں، شکایات کا ازالہ کروں گا، شہریوں کو سہولت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ شہری نے کہا آپ نے وزارت اعلیٰ کے دور میں مثالی کام کیا، اب بھی آپ ہی اس دفتر کو ٹھیک کریں گے۔ شہریوں کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے یہ گفتگو تھی۔
Getting the first time passport? No, actually, I already have the Pakistan, but I just need to get the mini. इस कमरे में आते हैं जी सर, यहाँ से पहले एंट्री करवाते हैं। मगर टोकन वगैरह नहीं है, सिस्टम पे से उसमें लेकिन नहीं है, वो कह रहे नहीं है। सिर्फ दो मशीन है मेरे पास। एक बंदा जो है यहाँ पे 9 एक बंदा जहाँ वेट कर रहा है उसका नंबर उसका नहीं, अगर मैं आ रहा हूँ, मैंने आके करना है तो मुझे एटलीस्ट टोकन तो चाहिए। आपका सिस्टम इसका मतलब खराब हुआ वैसे खराब है, नहीं चल नहीं रहा टोकन, नहीं चल रहा इसका मतलब ये कब से खराब है? और सर एक शुरू में हमने चलाया है, लेकिन उसके बाद ये काउंटर ना हो। ये चाहे 9 भी हो, चाहे जब रश आ जाता है, अभी भी लोगों को नहीं पता ना किस टाइम किसकी बारी आनी है, ये तो किसी को नहीं पता। सिस्टम में जो घंटों को पैसे देते हैं ना, पहले आ जाते हैं हम जैसे लोग लाइन में। अच्छा, ये बार मैंने भी उसके बाद ये बार एजेंट भी उसमें बैठे, उनका क्या काम है? तो कहते हैं 3000 रुपया दें, अभी आपकी बारी 10 मिनट में आएगी। एजेंट का इशू है, जो हम एजेंट नहीं दे सकते वो जनाब लाइनों में सुबह से नहीं, ये गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि एजेंट 3000 रुपये दें तो बारी फौरी 2500 दे दें तो सही कह रहे हैं। वो बच्ची भी कह रही है, सही कह रहे हैं। ये एजेंट सबसे पूछे थे, वो हमें उधर ही घेर लेते हैं, वरना आप सारा दिन जगीर हो गए। सर मतलब आप साथ के साथ जो है ना उतरे। ये मुझे बताएं कि अगर एजेंट को मैं पैसे दूं तो 3000 तो पहले बारी आ जाएगी है, फौरी आ जाएगी। लाइन में बैठे पूरी आती है सारे जगह दिए ना उन्होंने। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, हाँ जी बेटा, क्यों पास आके किसको दिया चलो डायरेक्टर साहब गए, मुझे भी बताएं ये क्या बात है? ये तो सारा कुछ पूरे आम चल रहा है यहाँ पे। 6700 फीस है और उसमें 14 इस वजह से ज्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा। कोई प्रोटोकॉल यहाँ क्या कुछ तो हो रहा है ना यहाँ पे, जो आप इतना तो नहीं कह सकते ना नहीं हो रहा। ये 10 बंदे तो नहीं झूठ बोलेंगे सर, बहुत हो रहा है सर। वो आप मेरी एक बात का जवाब दें, प्राइवेट बंदा भेज के ना कोई भी आप मेरी एक बात का जवाब दें। एक बंदा गलत बयानी कर सकता है, 2 बंदे गलत बयानी कर सकते हैं, 3 बंदे 10 बंदे तो गलत। वो कह रहे हैं मैंने 14000 रुपये दिए, क्यों दिया आपने? ये आपके दिले निगरानी हो रहा है ना फिर इसका। नहीं हमने सर, वरना कैसे एजेंट अंदर आके काम कर रहा है? कोई अंडर एजेंट की किसी की एंट्री नहीं है सर। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। जो एजेंट वाले हैं ना, वो वहाँ से वो एजेंट आ रहे हैं, वो फॉर्म जमा करा रहे हैं उनके, हम लेन में लगे हुए। मैं उनसे कहा भी, मैंने कहा यार ये बाहर से एजेंटों की फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, ये जो लेन में लगे हैं सुबह के हम 8 बजे के हैं, 1 घंटा इंतजार किया, 9 बजे बैंक खुला, उसके बावजूद 9:05 दूसरी एंट्री की उनको वो पहले एजेंटों ने किए और फिर हमें हमारी बारी पास हुई। इसमें कोई शक नहीं सर, वहाँ ये भी मेरे साथ दे फॉर्म करते किए उसने, और वो आप उनको सबसे पहले वो उनको कोई पूछने वाले एक अपने आए हुए हैं, वो लाइन में कर सर एक्सक्यूज प्रॉब्लम ये है कि जैसे जितने भी एजेंट बने हुए हैं, हमें कहते हैं कि हम आपको लाइन में नहीं लगाते, आप यहीं पे खड़े रहे, हम आपका काम 3 मिनटों में करवा देते हैं। बैंक में गए, बैंक में भी सुबह वहाँ पे बंदा खड़ा, मेरे पास छोटी सी वीडियो बनी पड़ी है, वो बंदा मुझे कहता है कि ना वेरी गुड, सर यहाँ पे इतना जलील करते हैं। ये बंदा मौजूद है, इस वक्त भी वहाँ मौजूद होगा, ये बिल के बहाने आके गया है, ये वो अंदर बैंक वाला बंदा जानता भी है, और इस बंदे ने सारे चलान निकाल के 20-30 हज़ार रुपये उसको पकड़ाया है कि ये मेरे चलान जो है जल्दी जल्दी बंदे करवा दो। इस तरह की सोच बाहर सर। डायरेक्टर साहब बताएं, वीडियो मौजूद है उनके पास, ये पैसे ले रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और सब कुछ। आप कितनी देर से डायरेक्टर हैं? आप मुझे इस चीज़ को जस्टिफाई कर दें कि ये जो एजेंट है, ये सारे 20-25 लोग जो मिले हैं वो सब के सब कह रहे हैं कि पैसे लेके काम हो रहा है यहाँ पे। मुझे इसको जस्टिफाई कर दें, कैसे हो सकता है जब तक आप लोग खुद ना साथ शामिल? आप नहीं है तो आप इंचार्ज तो आप है ना। सॉरी इंटरव्यू सर, इस गेट से भी ये गार्ड भी शामिल होता है, ये गार्ड यहाँ से अंदर भिजवाता है, वो बाहर से एजेंट उनके साथ मिला होता है। एक बंदे का 1500 लेते हैं, फैमिली साथ हो तो मजबूर कर देते हैं कि आपके साथ लेडीज है 3500 रुपये देंगे। बुलाएगा, हम सारे गार्ड फारिग। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजी पर सज़ा सख्त करने की समरी इरसाल कर दी। पतंगबाजी की सज़ा
3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। महकमा दाखिला की जानिब से बताया गया है। पतंगबाजी का जुर्माना 1 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की तजवीज़ दी गई है। महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम की समरी वज़ीर आला को इरसाल की, जबकि कहा गया है कि पतंग बनाने और बेचने वालों की सज़ा भी बढ़ा दी गई है। वज़ीर आला काबीना की मंजूरी के बाद कानून पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा, तो महकमा दाखिला की जानिब से पतंगबाजी पर सज़ा सख्त करने की समरी इरसाल की गई है। रेडी वाला चौक लंडा बाजार में कपड़े की दुकान पर आग लग गई। रेस्क्यू की इमदादी टीमें आग बुझाने में अभी मसरूफ हैं। इचरा रेडी वाला चौक है जहां पर लंडा बाजार कपड़े की दुकान पर आग लगी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ आबिद चौधरी हैं, उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी, बताएगा इस कितना नुकसान हुआ है, क्या बताया जा रहा है और आग की वजूहात अभी तक सामने आ पाई है? बिल्कुल, ये इचरा का इलाका है, रेडी वाला चौक, जहाँ पर लंडा बाजार में अचानक आग लगी और आग में देखते देखते दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इतना मिलने के बाद रेस्क्यू मौका पर पहुंची तो तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद इस पर आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू का कहना है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद इस वक्त कूलिंग का प्रोसेस जारी है। अलबत्ता आधी सदी के वाकई में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान जो है उसका अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन इतना मिलने के बाद पुलिस भी जो है वो मौके पर पहुंच गई तो इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया ताकि इमदादी सरगर्मियों में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस वजह से रेस्क्यू के कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है, जिसके बाद सर्चिंग की जाएगी। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आगाह किया इस हवाले से। और अब बात कर लेते हैं शहर में डेंगू सूरत हाल की। डेंगू के मजीद 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में डेंगू के 2 मरीज म्यू और नवाज शरीफ अस्पताल में जेर इलाज हैं। 24 घंटों के दौरान 254 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ और रवां साल से अब तक शहर में डेंगू के 24 कन्फर्म्ड केसेस भी सामने आ चुके हैं। रवां साल से अब तक पंजाब भर में डेंगू के 57 मरीज भी सामने आ चुके हैं, तो शहर में डेंगू के मजीद 2 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 24 घंटों में डेंगू के 2 मरीज म्यू और नवाज शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। शहर की ओपन मार्केट के साथ यूटिलिटी स्टोर पर महंगाई का जिन बेकाबू। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा सोम का घी 33 से 60 रुपये फ़ी किलोग्राम महंगा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो ओपन मार्केट के अंदर तो महंगाई का तूफान है ही है। इसके साथ साथ जो शहर के यूटिलिटी स्टोर्स हैं यहाँ पे भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और दर्जा सोम के घी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। दर्जा सोम का घी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले सार्फिन के लिए 60 रुपये फ़ी किलोग्राम महंगा कर दिया गया है और अब इसकी नई कीमत 393 रुपये सामने आई है। इसके अलावा अगर जनरल कंज्यूमर्स की बात की जाए तो जनरल कंज्यूमर्स के लिए भी इसकी कीमतों में तकरीबन 33 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद अब इसकी नई कीमत 466 रुपये सामने आई है। और इस हवाले से सार्फिन का ये कहना है कि जो सार्फ यूटिलिटी स्टोरों का रुख करते हैं उनका मकसद ये होता है कि कम आमदनी के अंदर अपने जो राशन है वो ख़रीद लें। अगर यूटिलिटी स्टोरों पर इस तनासुब से कीमतें बढ़ेंगी तो उनके लिए यूटिलिटी स्टोरों से भी राशन लेना मुश्किल हो जाएगा। जो 33 रुपये इजाफा कंज्यूमर्स के लिए है घी की कीमत में और तकरीबन 60 रुपये। शहजादा, आपका बहुत शुक्रिया। एविसिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज के बायस करबाट पुलिस से गजूमता रोड ब्लॉक। तलबा की हमें इंसाफ दो की शदीद नारेबाजी देखने में आ रही है। मजीद उनका क्या कहना है, अक्सा सज्जाद वहाँ पर हैं, वो बताएंगी। जी अक्सा। एविसिना मेडिकल कॉलेज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर तलबा तालबात की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। तलबा तालबात का कहना है कि यहाँ पर फैकल्टी मेंबरान को टॉर्चर का जो है टॉर्चर करते साथ ही उनको काफ़ी मसाइल का भी सामना यहाँ पर करना पड़ता है। अटेंडेंस का मसला रहता है, इनसे जानते हैं कि क्या मसाइल है। मुझे बताइएगा किस तरह से क्यों एहतजाज करी हैं, क्या मुतालबा है आप? एक्चुअली 4th ईयर MBBS की स्टूडेंट है जिनकी डेथ हुई है। इतना डिप्रेशन और इतना जितना हमें इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। उस बच्ची की तबीयत खराब हुई है थर्सडे को, वो गई है शेख साहब के पास, बट शेख साहब का आगे ये रिप्लाई था कि जब तुम मंडे लगोगी तब आगे छुट्टी ले लेना। उसे हाफ लीव चाहिए थी ताकि वो घर जाकर आराम करती। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज आने से पहले उसकी डेथ होगी कार्डियक अरेस्ट वजह से। इतना टॉर्चर सारा सिलसिला है कि हमें ये उम्मीद है कि शेख साहब हमारी सारी पॉलिसीज मान लेंगे और जो हमारे पे स्ट्रेस और ट्रॉमाटाइज हमें किया जा रहा है उसको खत्म करके हमारी बात मानेंगे और हम अपनी डिग्री यहीं कंटिन्यू रखेंगे। इतना चार्ज करते हैं उसके बावजूद भी हौसले पे लाइट नहीं भेजते। अगर क्लास में है, क्लास में
पंखे बंद है, पूरा टाइम एसीज नहीं चलते, गर्मियों में भी एसीज नहीं चलते, आप टांग पे टांग रख के बैठ नहीं सकते हो। टीचर्स HODs आते, पंखे बंद, खिड़कियां बंद, पानी पीने पे इवन दो फाइन। जी, बच्चों को यहाँ पे काफ़ी तकलीफ का सामना है। मुझे बताइए किन मसाइल का सामना है यहाँ पे, आप कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू के साथ का सामना करना है? बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये बेसिकली कोई इनकी पास पॉलिसी नहीं है, ठीक है। SOPs होती हैं हर इंस्टीट्यूट की, इनकी कोई SOPs नहीं है। किसी का दिल करता है उठ के 50,000 फाइन कर देता है एक चीज़ का, कोई 20,000 कर देता है, ठीक है। एक छुट्टी का 3,000 जुर्माना है। बिल्कुल, यहाँ पे सुना है काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर हमारे साथ यहाँ क्या कर रही थी। अब आपको बताएं, जेलों में कैमरों की तनसीब का अमल मुकम्मल ना हो सका। सूबे भर की जेलों में नस्ब 20% से ज़ायद कैमरे ख़राब हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इंतजामी इस हवाले से क्या कर रही है? अली साही हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। और समेत पंजाब भर की जेलों में 2016 में कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग के लिए तनसीब का अमल शुरू किया गया था, लेकिन इब्तदाई तौर पर 28 जेलों में निजी जो फर्म है उसकी जानब से कैमरों की तनसीब कर दी गई, जबकि दीगर जो 14 जेलें थीं उनमें अभी तक कैमरों की तनसीब नहीं हो सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत की जानब से फ़ंड्स फ्राहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से दिन ब दिन कैमरों की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है और प्रोजेक्ट जो है वो 2 गुना से भी ज़्यादा पे अब चला गया है। जो कैमरों की तनसीब की गई है उसमें से भी मुतअद्दिद जेलों में 20% से ज़ायद कैमरे काम करना छोड़ गए हैं। जेल हुकाम का कहना है कि चूँकि SLA जो था वो 2021 में ख़त्म हो गया और उसके बाद किसी भी कंपनी को रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कैमरों के साथ सिक्योरिटी में और मॉनिटरिंग में मसाइल का सामना है। हुकूमत को भी बार बार आगाह किया गया, लेकिन जो साबिका हुकूमतें थी उनकी जानब से इस पर फोकस किया। अगर भर वक्त टेंडर। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तलबा तालिबात को 20,000 बाइस की फराहमी के हवाले से तकरीब का एहतमाम, जिससे सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने खिताब किया। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। शुरू किया जाए, उसके अंदर अपनी मुश्किलात होती हैं, उसकी अपना एक रूटीन आपको देखनी पड़ती है कि क्या किया जा सकता है। जब ये स्कीम इनिशियली लॉन्च हुई तो ये लॉन्च हुई थी 10,000 ई-बाइक्स के लिए, EV बाइक्स के लिए, लेकिन जब इसको देखा गया, मुश्किलात देखी गई और जब हमने देखा कि यहाँ पर तो अभी तक कोई इकोसिस्टम ही मौजूद नहीं है। इकोसिस्टम से मुराद मेरी ये है कि एक बार बच्चा घर से बाइक अपनी चार्ज करके निकल आया है और रोड के ऊपर अगर उसकी बाइक डेड हो गई है, 100 किलोमीटर की रेंज ख़त्म हो गई है, तो वो चार्जिंग कहाँ से करेगा? अब ये तो मुमकिन नहीं है कि वो अपना किसी दुकानदार के पास जाकर या कहीं और जाकर कोशिश करें उनसे उधार कि जी मैं आपके से चार्जिंग लगा लूँ अपना यहाँ पे, तो उनको लगाने नहीं देंगे। हालांकि अगर कोई इन बच्चों को या इन EV बाइक्स को चार्जिंग का मौका दे तो ये पैसों के अंदर चार्जिंग है, रुपयों के अंदर भी चार्जिंग नहीं है। एक स्टडी जो की गई है उस स्टडी के मुताबिक ये 1 रुपये से भी कम 1 किलोमीटर पड़ता है, चंद पैसों के अंदर 1 किलोमीटर की कॉस्ट आ रही होती है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2-2.5 घंटे की चार्जिंग में 100 किलोमीटर की चार्जिंग की है तो आप तो बिल्कुल इसको एक दिन के अंदर 100 रुपये से भी कम के अंदर इसके अंदर आप अपना फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं। यहां पर जब ये स्कीम लॉन्च हुई हमने इसके कुछ क्राइटेरिया चेंज किए। हम इसको 1,000 EV बाइक्स के ऊपर ले गए और 19,000 पेट्रोल बाइक्स के ऊपर लेकर गए। जब हमने इसका एक प्रोसेस स्टार्ट किया तो जो हमारे जितने यहाँ पे एलाइड पार्टनर्स हैं, जिसके अंदर PITB भी शामिल है, HSC शामिल है, बैंक ऑफ पंजाब शामिल है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट पंजाब शामिल है, ट्रैफिक पुलिस पंजाब शामिल है, ये सब डिपार्टमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया। अभी आप देख सकते हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तलबा तालिबात को 20,000 बाइक्स की फराहमी के हवाले से तकरीब जारी है, जो कि आपने भी देखी। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत, CCPO बिलाल सिद्दीक का बयाना अदालत पेश हुए। अदालत ने CCPO को चालान में ताख़ीर के जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ 15 रोज़ में कार्रवाई करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। मज़ीद तफसील जानते हैं इस खबर की मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिए समाअत के बारे में। कत्ल के मुलज़िम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है और माल मुकदमे के रोड डाकट ना बुझवाने पर CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक का बयाना
عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور عدالت نے مقدمے کا چلان بروقت پیش نہ کرنے کے ذمہ دار پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کر کے CCPO کو 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے مثالیہ نیلم نے قتل کے مقدمے کے ملزم کاشف انور کی درخواست ماننے پر سماعت کی تو CCPO لاہور بلا صدیق میانہ پیش ہوئے. جیسے مثالیہ نیلم نے CCPO سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے یہ کیس دیکھا ہے کہ اس میں 2021 کا کیس ہے اور اس میں مقدمے کا چلان پیش نہیں کیا گیا, جس پر CCPO بلا صدیق میانہ نے کہا کہ اس میں تھانہ جوہر ٹاؤن میں یہ مقدمہ درج ہوا جس میں پولیس اہلکاروں کی کوتاہی ہے اور جو روڈ ڈاکٹ تھا وہ بنایا تو گیا تھا لیکن اس کو فرانزک سائنس لیبارٹری نہیں بھجوایا گیا. جس پر جسم مثالیہ نیلم نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ان پولیس افسروں کے خلاف کیا کارروائی کی, اور جس پہ CCPO کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ زیر التوا کیسز سے پینڈنگ چلانوں کے جو کہ کافی حد تک ہم نے ختم کیے ہیں, ان کو ڈسپوز آف کیا ہے, چند ایک ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جس پر جسم مثالیہ نیلم نے انہیں کہا کہ آپ اس معاملے کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف 15 روز میں رپورٹ. بہت شکریہ ملک اشرف. رائل سوئس ہوٹل میں سید اشتر نقوی اور ASP شہر بانو نقوی کی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بھی شرکت کی. IG عثمان انور سمیت دیگر پولیس افسران بھی شریک ہوئے. رائل سوئس ہوٹل میں ASP شہر بانو نقوی کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی. وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی, گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان, IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, CCPO بلال صدیق کے میانہ, SSP علی رضا, DIG احسن یونس, SSP عاطف, SSP عائشہ شریک ہوئے. تقریب میں ایڈیشنل IG علی عامر ملک, DIG محبوب للہ, ایڈیشنل IG طارق عباس قریشی, SSP عیسیٰ سخیرہ, SSP عاطف نذیر شریک ہوئے. DPO صفدر رضا کاظمی, علی بخاری, ماجد ظہور, فیصل رضوی, سیکٹری رنگ روڈ سہیل شہزاد, DG ایکسائز ریٹائرڈ اکرم اشرف گوندل شریک ہوئے. سٹی نیوز نیٹ ورک کے ان پٹ ہیڈ زین العابدین, سینئر صحافی علی ساہی, امین حفیظ, بسام سلطان, عثمان محبوب گرایا شریک ہوئے. سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان, حمزہ امان اللہ, AC ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ محمد یوسف, امجد ثاقب, ملک وحید سمیت پولیس افسران, سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. تقریب میں رشتہ داروں, دوست احباب اور مہمانوں نے نو بہاتے جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کیمرامین رانا عظیم اور زاہد ملک کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42 لاہور.